So this is the question, right? Yes, sir. B part you are saying, right? Yes, sir. Annabelle and at A wishes to visit birthday to B. Okay. On the opposite vertex of block of cheese, which is 30 centimeter high. Hmm. What is the shortest distance that Annabelle must travel? A is done. If she hates eating cheese, okay. So it means she does not want to go through the cheese, right? Yes, sir. So she will go like she will travel along the surface, on the surface, right? She will not go through the cheese, inside cheese, right? So Yes, along sir. the surface means from A to B, she has to go from A to B. So the shortest path we have to consider. Okay, there are many different paths. Like she may go along A to in this direction diagonally, and then like this along the edge. But we are looking for the shortest path. So if suppose she go like this along the surface and then this, so this may be the shortest path, right? But we'll not figure out in that way because what would be the dimension, like in which direction the ant has to travel, the Annabelle ant has to travel, like this way or this way or this way, like we are not sure about that, right? So what we'll do, we'll open up the box, right? So when we open up the box, so the box will look like this is the the base of the box, right? Yes, sir. If I try to draw the its vertical surface, so it would be like this, है ना? ये इस तरह से दिखेगा. आपने कभी बॉक्स ओपन किया होगा तो आपको Yes, sir. पता होगा ये इस तरह से दिखेगा, है ना? Yes, sir. ठीक है. So this rectangle, the inside rectangle is a base. तो अगर मैं इसको बी बताऊं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बी बता दूं, ये बी है, ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट referring the diagram. So the base is like that, and I've opened up all the vertical surface. So where your point A will lie? A कहाँ होगा आपका बताइए? पॉइंट ए कहाँ होगा? अगर आप डायग्राम को थोड़ा देखिए ध्यान से, ठीक है, मैंने Sir, पॉइंट बी दिया हुआ है और मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है, ठीक है, तो पॉइंट ए कहाँ होगा? sir नीचे की साइड. नीचे के साइड में ये एक पॉइंट ए हो सकता है, ठीक है, मैं इसको ये एक पॉइंट ए हो सकता है क्योंकि यही जाके ऊपर कनेक्ट होने वाला है, और या तो Yes. ये भी एक पॉइंट ए हो सकता है ना? Yes, So sir. these are two possibilities for A, right? Fine. These are two possibilities क्योंकि ये भी यहाँ पे जाके जब उसको हम टर्न करेंगे तो that is also a point A, isn't it? So Yes. our job is to find out the shortest distance between A and B. तो अगर मैं इस तरह से अभी इसको A and B का डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, like this is 30 centimeter and this is 20 and this is also 20, height and width is 20, right? So if suppose I want to figure out the distance between A and B, क्योंकि अब हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चलेगा क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे एक रैंडम पाथ लेने की कोशिश कर रहे थे, so we are not sure about which point we have to consider for the shortest distance.
आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू ओपन अप द बॉक्स। तो डायरेक्ट हमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मोड़ोगे आप, मान लो कि ठीक है ये एक डिस्टेंस हुआ, पहले मैं दोनों दोनों पॉसिबिलिटी दिखा दूं आपको। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इज like this is the second possibility. Now we will find out the distance by Pythagoras, but first to understand, if we again close the box, okay, हम अगर उसे फिर से मोड़े, ये सारे सरफेसेस को, वर्टिकल सरफेसेस को अगर मोड़े हम फिर से, तब जो पाथ दिखेगा वो पाथ तो अल्टर नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो लाइन जो है वो सिर्फ मुड़ जाएगा। आर Yes, यू sir. गेटिंग? सो वी हैव टू फॉलो दैट पाथ ओनली। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ये Yes, फिर sir. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वी आर नॉट श्योर अबाउट वेयर इज दैट पॉइंट लाई इन दिस डायग्राम बेसिकली, राइट? तो इसके लिए इसको अब जब ओपन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर, मतलब हमें इसमें पता चल जाएगा बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? ओके, तो अगर हमें इस, चलो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। सो फ्रॉम दिस condition, what would be the distance between A and B? पाइथागोरस हो गया ना ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया। तो अगर चलो ठीक ठीक है, इसको ए डैश कर लेते। तो भी मुझे बताओ ए डैश बी का डिस्टेंस क्या होगा? पाइथागोरस लगा दोगे आप, है ना? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो गया टोटल? 30 प्लस 20, 50. हाँ 50 डायरेक्ट आप कर दोगे, प्लस 20 स्क्वायर। तो बताओ ये डिस्टेंस। अच्छा, अगर Sir, मैं, 3.85. नहीं हम इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ही से पता चल जाएगा। अगर हम ये अभी कंसीडर करते हैं ए बी, ठीक है ना, तो ये 20 है और ये 20 है एंड दिस इज 30। सो इफ वी टेक दिस पाथ, राइट, सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट among these two and this is only two possibilities for the path, right? Yes. तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस डायमेंशंस। ठीक है, ना कि ये वाले डायमेंशन, क्योंकि ये बड़े होंगे ना, 30 एंड 20 है। ठीक है, वो दोनों कैलकुलेट करके देख लो अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो। 20 प्लस 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? हम्म 1 second, sir. हम्म So 53.85. ये कौन सा? ए बी डैश, ए डैश बी, Yes, sir. ए डैश बी हो गया 53.85 और ये कितना हो गया? 1 second, sir. हम्म So 50. 50। तो शॉर्टेस्ट तो ऑब्वियसली यही हो गया, है ना? जो Yes, sir. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हो गया 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर सॉरी। तो ये वाला बात लेंगे। आर यू गेटिंग? अब आप इसे ध्यान से जरा देखने की कोशिश करो। तो जब इसको हम मोड़ेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको मोड़ते हैं तो ये एक ऐसा कौन सा पाथ होगा, अगर आप उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हो तो एक ये जाएगा, इस तरह से कहीं जाएगा, फिर वो ऐसा कहीं चला जाएगा। बात समझे आप? डायग्राम में अगर आप देखो ध्यान से, इसको अगर मोड़ोगे आप तो ये इस तरह से पाथ गया। तो ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, दैट वी आर नॉट श्योर कि ये कौन सा पॉइंट है, तो इसके लिए हम उसको ओपन ही कर देते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, चलो अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? So third. थर्ड। 1 second, sir. हम्म Yes, sir. थर्ड।
An aircraft hanger is with diameter 40 cm, 40 meter. Then 50 helicopter places an elastic rope across the top of the hanger, and one end is pinned to a corner at A, and pulled right at the corner B. Determine the length of the rope. तो ये कुछ इस तरह से जाएगा रोप जो है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से रोप जाएगा। समझे आप क्या दिया है Yes, sir. क्वेश्चन में कि पॉइंट ए से ऐसा, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है एक्चुअली, थोड़ा ये टॉप से लिया है ना, तो ये हमें फिक्स पता नहीं है कि ये एक्चुअली कहाँ पे जाके कट फिट होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ का जो है हमें श्योर नहीं है कि कैसे होगा, ठीक है। तो आप ऐसा एक समझ लो, ठीक है। अभी आपको एक, चलो एक ऐसा टेंट बनाना है, आप इमेजिन करो एक टेंट बनाना है, ठीक है। अब इस टेंट पे हमें क्या करना है, इस तरह से रोप डालना है, ठीक है ना, जो एक पॉइंट से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को अटैच होगा, ठीक है। अभी आपको एक रोप, आपको ये टेंट बनाना है समझो, ठीक है, और आपको ये रोप कनेक्ट करना है। तो आप किस तरह से सोचोगे, आप जरा उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से उसको सोचोगे। आप बनाने के बाद आप डालने की कोशिश नहीं करोगे। द मेन पर्पज इज वी हैव टू कनेक्ट पॉइंट ए एंड बी, एंड द रोप शुड गो ओवर द टॉप ऑफ द हैंगर, राइट। तो इसको भी आप ओपन अप कर दो। आर यू गेटिंग? जो आपका जो ये हैंगर है ना, ये Yes, जो sir. हैंगर है, ये भी तो एक पहले फ्लैट सरफेस रहेगा जिसको आपने हैंगर का एक फॉर्म दिया हुआ है, राइट। तो एक फ्लैट सरफेस होगा। तो आप जब इसको फ्लैट सरफेस Yes, sir. कंसीडर करते हो, so what shape it will take, like the the top of the semi cylindrical hanger is there. If you want to open it up, right, so what shape it will take, कौन सा शेप ये लेगा? आप बात समझ रहे हो मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. देखो मैं आपको बताऊँ, ये एक पेज है ना, ये एक पेज है, राइट। अब इसी पेज को मुझे क्या करना है, हैंगर का फॉर्म देना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना, ये हैंगर का फॉर्म हो गया। बात समझे आप, है ना। तो पहले क्या था, ये पहले तो रेक्टेंगल था ना, ये, है ना। Yes, sir. आर यू गेटिंग? पहले तो ये रेक्टेंगल था ना, ऐसे। फिर इस, ये रेक्टेंगल था तो मैंने इसको क्या किया, हैंगर Yes, का sir. शेप दे दिया। अभी मुझे पॉइंट ए, अभी देखो एक पॉइंट ए यहाँ होगा, एक पॉइंट बी ये है, तो हाँ पॉइंट बी यहाँ होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम को, तो ये एक कॉर्नर है पॉइंट ए, और एक दूसरा अपोजिट कॉर्नर है पॉइंट बी, डायगोनली अपोजिट, राइट। अब ये दोनों पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट, रोप मेरे को ये Yes, कनेक्ट करना है, आई हैव टू कनेक्ट द रोप between these two points that should go over the top of the hanger, right. So this is the same scenario we have, right. Are you getting? This is the same scenario we have. अभी इसको मुझे यहाँ से ये yes, रोप sir. ऐसे डालना है, right. So what we'll do, if you open it up, this diagram, so this will take a shape of rectangle, ठीक है। इस तरह से ये रेक्टेंगल का शेप ले Yes, लेगा, sir. और मुझे ये जो रोप है वो इसके ऊपर से ऐसे करके कनेक्ट करना है। इन इलास्टिक के मतलब स्ट्रेट लाइन होगा वो, है ना। इन इलास्टिक दिया हुआ है कहाँ पे, इन इलास्टिक रोप, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो कर्व नहीं लेगा, मीन्स इट वोंट टेक अ शेप ऑफ कर्व, इट विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इट विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। तो यही जो हम Yes, यहाँ पे जो करते थे ना, अगर, तो ये हमें प्रॉपर डायमेंशन पता नहीं था कि ये कहाँ पे जाके टच होगा, कैसे जाएगा, ये हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम उसको ओपन ही कर देते हैं और फिर ऐसा रोप डाल देते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। और वो तो बढ़ेगा नहीं ना, अगर आप उस हैंगर को, मीन्स उस फ्लैट सरफेस को, रेक्टेंगल को आप हैंगर का शेप दोगे, तो क्या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बढ़ जाएगा क्या? सरफेस के ऊपर से नहीं बढ़ेगा ना। आपका तो वो सरफेस तो सेम कांस्टेंट है,
आर यू Yes, गेटिंग? sir. ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ये तो बढ़ने वाला है नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। जब आप उसको मोड़ोगे भी तो भी वो उतना ही रहेगा। आर यू गेटिंग? तो सिर्फ हमें ये नहीं पता था कि ये जाएगा कहाँ से, तो इसके लिए Yes, उसको हमने sir. कट कर दिया। अभी मुझे आप बताओ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? हम्म? ये ए एंड बी का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप? अभी तो मैंने सिंपल कर दिया ना, ओपन कर दिया आपको ये। Yes, हाँ sir. हाँ, तो कैसे फाइंड आउट? Length and width sir दे रखी है ना 50 and 40. 50 दे रखी है, जो कि ये है लेंथ, ठीक है। और ये कितना है, विड्थ कितना दिया हुआ है? अगर आप इसको देखोगे, ओपन करोगे, तो जो विड्थ है वो दैट इज नथिंग बट द यू नो दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल बेसिकली। Circumference. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल हाँ क्या सर. होता है? हम्म? सर, Pi r. पाई आर, वेरी गुड। तो ये जो विड्थ होगा वो कितना हो जाएगा? आर कितना दिया हुआ है? आर कितना दे रखा है इसमें? डायग्राम देखो। So आर 40. आर आर कितना दे रखा है? 20। डायमीटर 40 हो गया ना, Yes, sir. राइट। सो आर कितना दे रखा है? 20। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 20. 20 पाई, है ना। मीन्स ये जो विड्थ होगा, जो भी ये है, वो 20 पाई हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये इससे बड़ा है, सो वी कैन से दैट दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। ओके, तो कोई मायने नहीं रखता। नाउ हाउ टू फिगर आउट द डिस्टेंस डी? तो पाइथागोरस लगा दो आप। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 50 स्क्वायर प्लस 20 पाई द होल स्क्वायर। तो वो डी स्क्वायर नहीं होगा, वहां पे सिर्फ डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक है। बताओ आप कितना होगा आंसर इसका? Sir 80.3. 80.3 3. मीटर। तो राइट है आंसर, जरा चेक कर लो एक बार। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आप देख लो इसको, कॉपी कर लो। डन। Yes, sir. चलो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा करना है? अभी फोर्थ करना है। 4. Yes, sir. ओके, ये सब क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल हैं। क्या दिया हुआ उसमें? द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल इज आर, ठीक है। ये स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना दिया है? आर दिया हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज कैपिटल आर, ठीक है ना। तो कैपिटल आर दिया हुआ है। तो चलो मैं थोड़ा डायग्राम बना दूँ। अब रेडियस दिया है कैपिटल, और ये सेंटर पे गिवन दैट द सेमी सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये जो पॉइंट है, ये क्या है? सेंटर है बेसिकली। ये डायग्राम थोड़ा रॉन्ग लग रहा है मुझे, क्योंकि ये क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन दैट द सेमी सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर। तो ये जो सेमी सर्कल है, वो सेंटर से पास हो रहा है एक दूसरे की, ठीक है ना। तो ये Yes, सेंटर है sir. बेसिकली इस सेमी सर्कल का, और ये सेंटर है इस सेमी सर्कल का। बात समझ में आ रही है आपको? तो थोड़ा ढंग का डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझे, क्योंकि ये सेंटर लग नहीं रहा है ना। थोड़ा Yes, sir. लगने वाला बनाए तो क्या हमें थोड़ा इजी लगेगा समझने में, ठीक है। चलो ये हो गया। तो यहाँ से एक गया एक सेमी सर्कल, और एक यहाँ से सेमी सर्कल गया।
ठीक है, दिख रहा है आपको? तो यस सर। अभी ये सेंटर बराबर लग रहा है ना कि ये सेंटर से पास हुआ है, तो इसका रेडियस कितना है, आर दिया हुआ है। तो ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रेडियस ऑफ एक्चुअली बोथ ऑफ द सर्कल, बोथ ऑफ द सेमी सर्कल। ये भी डिस्टेंस आर ही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? इसके यस सर। इसके बीच में एक ये दे दिया है, एक कंप्लीट सर्कल दे दिया है जो कि इसके मिड पॉइंट को ही टच होगा, क्योंकि सिमेट्रिक नेचर है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो सिमेट्रिक है ना। अगर आप सेम रेडियस का दो सर्कल दिया हुआ है, उसके बीच में भी सर्कल डाल दिया है, तब तो ये सिमेट्री हो गया ना एक तरह से, है ना। यस सर। तो इसमें अगर चलो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना। इसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आर अपॉन आर फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर अपॉन आर। तो एक चीज और दिया हुआ है, व्हेन सर्कल्स टचेस देयर सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये नोट दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम बात समझ जाते हैं चीज को। ठीक है, कि मतलब जब भी कोई सर्कल टच होता है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर्स जो रहते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा। आप ये कैसे भी आप देख सकते हो, अगर ये टच हो रहा है, ठीक है, कोई भी सर्कल, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर्स ये स्ट्रेट लाइन में ही होंगे। ये बताया हो चाहे ना बताया हो तो भी ये समझ में आ जाती है बात, ठीक है ना। यस सर। हम्म, तो वैसे यहाँ पे जो है ये सर्कल है, ये टच हो रहा है इन सबको, तो ये जो सेंटर है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, और ये भी सेंटर है ना। इस तरह के कोई भी पॉसिबिलिटीज में सारे पॉइंट्स, टचिंग पॉइंट एंड सेंटर्स सब एक कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन पर होते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड भी कर दूं तो भी कुछ, ये क्या होगा, एक लाइन होगा। अच्छा, एक ये दिख नहीं रहा एक लाइन, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ फिर से। ये एक लाइन ही होगा, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि कैसे करेंगे इसको। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, ये आर है, ये भी आर ही होगा, स्मॉल आर, बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, फुल सर्कल। और ये लेंथ आर है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना। अब मुझे आप बताओ किस तरह से इसको अप्रोच करोगे। ये रिलेशन आना चाहिए, आर बाय आर आना चाहिए, ठीक है। चलो, बिकॉज ऑफ सिमेट्री नेचर एक चीज और मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। बिकॉज ऑफ सिमेट्री नेचर दिस वुड बी आर बाय टू, है ना। ये टचिंग पॉइंट है तो ये सेंटर, मतलब ये मिड पॉइंट पे टच होगा, ठीक है ना। यहाँ से भी मिड पॉइंट होगा, यहाँ मतलब मिड पॉइंट पे टच होगा, तो बेसिकली ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ वो आर बाय टू हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है ये चीज? क्योंकि आप देखो दो सेमी सर्कल है, अगर उसके बीच में आप सर्कल डालोगे तब तो सिमेट्री होगा। जो भी डिस्टेंस यहाँ से होगा वो भी सेम डिस्टेंस यहाँ से होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर सेमी सर्कल बड़ा है या छोटा है तो हमें समझ में ना आए। ये दोनों सिमेट्री होगा, क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल क्या है, सेम डायमेंशन का है, राइट। तो ये आर बाय टू हो जाएगा। अभी आप मुझे बताओ कि कैसे रिलेशन सेटअप करोगे। तो ऑब्वियसली एक पाइथागोरस से ही सेटअप कर पाओगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, रेडियस यस। एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। लास्ट क्लास में भी बताया था आपको मैंने। जब भी सर्कल पे रेडियस और टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, मतलब अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जो सेंटर से रेडियस ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ओके। अभी आप मुझे बताओ कैसे रिलेशन सेटअप करोगे। यहाँ पे ये मैंने दे दिया आर बाय टू, एंड दिस इज आर बेसिकली। और ये मैंने आपको हेल्प के लिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है। आप जरा सोचो कैसे होगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर। अगर हमें पाइथागोरस अप्लाई करना है इन दिस ट्राइंगल, यू नीड टू फिगर आउट दिस लेंथ, राइट। तो ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे।
देखो ये टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितना है, ये एक सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर है, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये एक सरकमफेरेंस पर है ना, मतलब सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस पे है। तो ये टोटल लेंथ Yes. कितना होगा, अगर मैं इसको ओ बोल दूं तो ओ ए कितना होगा? समझ नहीं रहे हो लग रहा है। देखो ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, तो ये सारे डिस्टेंस कितने होंगे, क्या होंगे ये सारे डिस्टेंस, रेडियस होंगे ना। Yes, sir. आर यू गेटिंग, ये सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, रेडियस होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. क्योंकि ये सेंटर से सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट होगा, दैट वुड बी नथिंग बट रेडियस, रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे अगर आप देखो ओ ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, So 2R. नहीं नहीं, कैपिटल आर होगा ना, आप समझ रहे हो, कैपिटल आर होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल में ओ सेंटर है और पॉइंट ए इज ऑन द सेमी सर्कल, तो ओ ए Yes, sir. कितना होगा, कैपिटल आर होगा, क्योंकि वो R. रेडियस दिया हुआ है ना उसने, है Yes, ना। sir. तो अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर Capital R. माइनस स्मॉल आर, ठीक है ना, कैपिटल आर Yes, sir. माइनस स्मॉल आर। चलो अभी हमने Small. क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल में वी गॉट द हाइपोटेन्यूज, वी गॉट दिस लेंथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मैंने इसे आपको बहुत इजीली बता दिया, बट यही चीज समझना इम्पोर्टेंट है कि ये जो होगा ना, बिकॉज ऑफ सिमेट्री नेचर ही r/2 होगा, ठीक है। तो अब कैसे आप सेटअप करोगे रिलेशन, रिलेशन सेटअप कैसे होगा इस ट्राइंगल में, पाइथागोरस से ही हो पाएगा। तो क्या होगा ये, Yes, sir. r माइनस आर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू sum of square of its perpendicular sides, so which is r square r by 2 square। इसको सिंप्लीफाई करो, अभी आप करो सिंप्लीफाई बुक पर, और मुझे बताओ ये रेशियो कितना आ रहा है आपको। So small r upon capital R is equals to 3/8. आ गया ना, पक्की बात है, Yes, sir. ऐसा तो नहीं आंसर सिर्फ चेक करके बोल रहे Yes, sir. No, sir. हो। ओके फाइन, ठीक है। तो फिर इसको एक्चुअली मैं इसको थोड़ा ऐसे करता था, अगर आपको मैं बता दूं थोड़ा शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। आपको अगर ओपन किए रहोगे तो फिर वो रॉन्ग मेथड है, क्योंकि फिर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, है ना, और ए Yes, माइनस sir. बी, तो ए माइनस बी हो गया, फिर ये आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, है ना। तो ये कितना आर Yes. आर कैंसिल हो गया, तो आर ब्रैकेट आर माइनस 2r, किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजियर मेथड है, ठीक है। तो ये r कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4r माइनस 4 टू 8r इज इक्वल टू स्मॉल r, तो ये 3r हो गया इज इक्वल टू 8r हो गया। तो r बाय r निकालना है, तो 3/8, ठीक है। Yes, sir. सिंप्लीफाई नेक्स्ट करना है, कौन सा करना है अभी, So fifth. फिफ्थ करना है, ओके ठीक है। इसमें भी आपको एक कंस्ट्रक्शंस करने हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बता दूंगा तो इजी हो जाएगा, फिर आप समझ जाओगे कंस्ट्रक्शन कैसे हैं इसमें। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अ लार्जर सर्कल टचेस द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो ये 10 है इस सेंटर से, ठीक है ना, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, है ना, ये भी 10 Yes, हो sir. जाएगा। अब ये 10 हो गया, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। तो स्मॉल सर्कल का रेडियस अगर r ले लूँ, स्मॉल r, ठीक है ना,
तो स्मॉल आर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, अभी ये जो है ये पॉइंट से है ना, ये पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आर हो जाएगा। दूसरा डायग्राम बनाऊं, बड़ा डायग्राम, इसमें ना दिख रहा हो तो। यस सर। ठीक, चलो एक सेम डायग्राम है ये, फिर एक मिडल पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना, ये फ्रॉम सेंटर, ठीक है। फिर इसी के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये तो जैसे मैंने अभी बताया था कि कॉन्टेक्स्ट पॉइंट्स और सेंटर ये सब क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे। तो चलो अभी ये डिस्टेंस कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, टोटल भी 10 हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ तो ये टोटल डिस्टेंस कितने होंगे यहाँ पे, ये भी तो रेडियस ही है ना सेमी सर्कल का, यस सर। तो ये भी 10 ही होगा। तो अगर उसका हाफ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि वो डायमीटर है तो 5 हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अब ये सर्कल कैसा है, इसमें ठीक है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ना। अभी इसका रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको आर ले लिया मैंने रेडियस इसका। ठीक है, यस सर। इसका रेडियस आर ले लिया। फिर यहाँ से अगर ये डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ पर, हाँ, यस सर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5 माइनस आर, क्योंकि ये टोटल 5 है ना। बात समझ में आ रहा है आपको, ये टोटल 5 है और ये आर हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ये मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला है ना। तो ये रेक्टेंगल बन गए, रेक्टेंगल बन गए, इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आर है, सो दिस इज ऑल्सो आर। तो ये टोटल लेंथ तो 5 थे ना, ये बात तो आपको कंफर्म है क्योंकि रेडियस है यस वो। सर। तो 5 माइनस आर हो गया इस लेंथ, इसका लेंथ। ठीक है, अब मैं एक्चुअली मेरा आइडिया क्या है यहाँ पर, विल आई विल कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है, और फिर बाद में पाइथागोरस लगा दूंगा क्योंकि ये चीज मुझे पता है। देखो ये भी आर है, ये सेमी, ये सर्कल का रेडियस, और ये यस 5 होगा, और ये टचिंग पॉइंट और सेंटर क्या होते हैं, हमेशा कोलिनियर होते हैं, ये बात ध्यान में रखो। ये टचिंग पॉइंट है, ये दोनों सर्कल का, और ये दोनों सेंटर है, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर ही होंगे। तो यहाँ पे कुछ गैप बनने का सवाल ही नहीं है। तो उसका जो टोटल लेंथ है वो कितना हो जाएगा, आर प्लस 5, और ये 5 माइनस आर है ना। तो ये चीज मुझे पता हो जाएगा। और ये चीज कितना है, रेक्टेंगल है, तो ये भी सेम डिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कितना, यस। ये डिस्टेंस कितना होगा वो बताओ मुझे। चलो अभी ये मैं ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, हाँ। यस सर। तो ये टचिंग पॉइंट, फिर यहाँ पे वही बात है, फिर से वही बात आ रही है कि जो ये सेंटर है और ये सेंटर है और ये टचिंग पॉइंट है, तो ये क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। थोड़ा दिखने रहा है क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बना है, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, एक लाइन में ही होंगे। अब बात समझ रहे हैं आपको यहाँ पे। लेकिन जो प्रॉपर्टी क्या है, वो टचिंग पॉइंट एंड सेंटर दे आर कोलिनियर।
देखो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे, वो सब एक लाइन ही है, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, 10 है। हाँ, यस सर। टोटल कितना है, 10 है, क्योंकि रेडियस है ना वो, सेमी सर्कल का रेडियस है, और ये आर है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस आर। यस सर। 10 माइनस आर हो गया ये, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे अब, ये 90 डिग्री है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 10 माइनस आर है, और ये आर है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको। तो ये कैसे यस फाइंड आउट करोगे। सर, पाइथागोरस से। हाँ, तो पाइथागोरस से फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस आर द होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका लेंथ आया, चलो इसको मैं डी कर देता हूँ। तो अभी ये डी जो है, अगर मैं मुझे इससे फाइंड आउट करना है अबव राइट एंगल ट्रायंगल से, तो कैसे करोगे, वही पाइथागोरस लगाओगे। तो 5 प्लस आर द होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस आर द होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो, दोनों मैंने डी फाइंड आउट किया है, दोनों का डिस्टेंस दोनों डी है, बट आई हैव टेकन डिफरेंट राइट एंगल्स ट्रायंगल। अगर आप नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा, 10 माइनस आर द होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस, ठीक है ना, पाइथागोरस तो आपको लगाना आता ही होगा, इजी हो। तो ये यस सर। हाइपोटेन्यूज है तो माइनस आर स्क्वायर किया। फिर अगर मुझे इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये आर प्लस 5 है टोटल। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, आर प्लस 5 है ये टोटल लेंथ, आर प्लस 5। सो हाइपोटेन्यूज है वो, तो आर प्लस 5 प्लस आर द होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस आर द होल स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस डी है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो आप, साथ साथ में मैं भी करता हूँ। मैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा, आपको जो कैसा करना है। क्या हो जाता है उसमें, सिंप्लीफाई हो जाती है चीज। सर 2.5। राइट आंसर चेक कर लो एक बार। यस सर। ओके, ये डायग्राम में कुछ डाउट है आपको, नो सर। श्योर ना, ठीक है। बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि जो टचिंग पॉइंट होता है, सेंटर होते हैं, वो सब एक लाइन में होते हैं, ठीक है। चलो कौन सा करना है अभी, क्या करना है। सर 8D का। एट डी ऊपर है क्या, यस सर। एट डी, हाँ एट डी का कौन सा, क्वेश्चन 70। 17। यस सर। अच्छा, हाँ इसमें क्या दिया है, कॉर्ड ए बी ऑफ सर ये लेंथ। लास्ट क्लास के अंदर हमने सॉल्व कर लिया था, अच्छा, बट हम इसको प्रूव सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। ये लास्ट टाइम किया था हमने। यस सर, लास्ट क्लास में। अच्छा अच्छा, तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे ऐसा। अच्छा एक मिनट देख लूँ मैं फिर से, यस कॉर्ड सर। ए बी ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, ये किए थे यार, ओके।
Two centimeter drawn in a circle of radius 3 centimeter. A diameter BC is constructed. तो ये भी 3 हो जाएगा, है ना. The chord AB is extended to meet the tangent at D. Okay. Find the length of AD. AD का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. तो हाँ, तो इसको, हाँ यही तो आपको मैं तभी बता रहा था कि सिमिलर, ठीक है, सिमिलैरिटी हम लोग डिस्कस करने वाले थे. ओके फाइन. तो बेसिकली इसमें क्या है, हम ये कनेक्ट करेंगे पहले तो इसको, है ना. AC फाइंड आउट करना है. ये 3 है, ये 2 है. तो अगर, चलो एक इसको कनेक्ट करते हैं, बाद में मैं ट्रायंगल आउट कर दूंगा इसमें से. ये A है, ठीक है. तो ये एंगल क्या हो जाएगा, CAB एंगल क्या होगा ये बताओ. CAB एंगल कितना होगा. 90 डिग्री सर. क्यों 90 होगा. एंगल इन अ सर्कल. वेरी गुड, वेरी गुड. मीन्स एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना. और एंगल BCD कितना होगा, BCD ये कितना होगा. सर 90 डिग्री. वो भी 90 होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी, राइट. चलो अभी अ, इसको मैं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल, उसको मैं अलग से बनाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वही हमारे काम का चीज़ है, बाकी कुछ काम का नहीं है, ठीक है. तो एक मैंने ये बनाया, BC बनाया, ठीक है, ये BD बनाया, सॉरी, ये D है, ये B है, ठीक है. डायग्राम का नाम मैं सेम रख रहा हूँ, ये आपके रेफरेंस के लिए. फिर ये जाके इधर 90 डिग्री बन जाते हैं, ठीक है. ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट C है. समझ में आ रहा है आपको बात. यस सर. फिर ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो ये पॉइंट क्या है, A हो गया, ठीक है. हाँ, यस सर. अब मुझे बताओ AB कितना दिया हुआ है. सेम डायग्राम है, सिर्फ मैंने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है. सर AB 2. 2 दिया हुआ है, ठीक है. BC कितना है, 336. 6 है, ठीक है. यस. AC पता है आपको. नो सर. तो AC निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस ठीक है. सर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है, माइनस यस 2 सर. स्क्वायर. तो ये कितना हो गया, 36 माइनस 4, यस सर. 32. तो AC कितने हो गए, √32, यस सर. ठीक है ना. ये AC √32 हो गया. यस सर. कैलकुलेशन मिस्टेक जरा एक बार चेक कर लेना अगर हो तो, ठीक है. सिर्फ पाइथागोरस लगाना है राइट एंगल ट्रायंगल में. तो 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 इज 32 √32, ठीक है, कोई गलती नहीं है. नाउ वी हैव टू फिगर आउट AD हमें चाहिए, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रायंगल है, कौन सा, जो बड़ा ट्रायंगल है ना, इसको X ले लेता हूँ, ठीक है. तो जो यस बड़ा सर. बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, वो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल के, अच्छा, या दोनों भी ले सकते हैं. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है. अब सिमिलर कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है. देखो, ध्यान से देखना इसमें, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों छोटे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो दोनों बड़े राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर है. ये कैसे, ये पहले प्रूव करना है, ठीक है. तो इन ट्रायंगल ADC and, in ADC and BDC, ठीक है. अभी नाम मैं कैसे भी लिख रहा हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आप एक बात देखो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल, ये एंगल जो है ना, ये जो बड़ा एंगल लिखा है मैंने CDA, ठीक है, और CDB, ये तो कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल में. आप पहले देख लो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ADC, यस सर. और एक बड़ा ट्रायंगल है BDC, ठीक है ना. आप पहले ट्रायंगल पकड़ में आ गया आपके, ट्रायंगल कौन सा लिया है मैंने. यस सर. हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल में ये एक तो एंगल कॉमन है ना,
Yes, sir. तो कॉमन एंगल है तो मतलब सेम ही होगा वो, उसमें तो Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी B. सी, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वो तो दोनों कॉमन ही है। अब Yes. 90 डिग्री वाला उठा लो, 90 डिग्री का ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला उठा लो तो ए डी सी लिया है मैंने, तो ए डी सी में कौन सा 90 डिग्री है, सी ए डी। Yes, सी sir. ए डी इज इक्वल टू डी सी बी, है ना, डी सी बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो आपको ये देखो सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टी से जब दो एंगल इक्वल हो गए दोनों दो ट्रायंगल में, तो वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं, है ना। Yes, sir. अब मैं नाम थोड़ा सोच के लिखूंगा क्योंकि वो सिमिलैरिटी आना चाहिए। तो क्या लिया मैंने, डी लिया है, ए डी सी में डी लिया है, डी ए सी लिख दिया, ठीक है ना। तो अभी आप लिखते वक्त क्या करोगे, देखो एंगल डी तो कॉमन है तो डी लिख दोगे पहले, ठीक है। फिर मैंने ए लिया है ना, डी डी ए सी लिया है, डी ए सी क्या 90 डिग्री है, तो मतलब मैंने 90 डिग्री पकड़ एंगल 90 लिया हुआ है, तो बड़े वाले में कौन सा लूंगा, सी लूंगा, डी सी बी, क्योंकि डी सी बी 90 है, बात समझ रहे हो आप। Yes, sir. आप जब अब इसमें से एंगल जब आप उठाओगे ये नाम में से, तो एंगल सेम होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। मतलब अगर मैं ए डी सी उठाया तो ए डी सी उठाया तो सी डी बी ये इक्वल होने चाहिए, बात समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. अगर मैं सी ए डी उठाया सी ए डी, तो ऐसे ही बी सी डी, तो बी सी डी, ये भी बी सी डी ही है एक्चुअली, ठीक है ना, तो दोनों सेम। तो ये हो गया एक पॉइंट वन। अब मैं ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल ले लूंगा, तो डायरेक्ट नाम बताऊं, उसमें डायरेक्ट नाम लिख के Yes, दिखाऊं। sir. Yes, sir. चलो अभी आप मुझे हेल्प करो, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, एक छोटा जो है और बड़ा, ठीक है, मतलब ये वाला और बड़ा, ठीक है। चलो अभी मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, वो दोनों भी सिमिलर होंगे, ये बात तो समझ में आ गई ना आपको, क्योंकि ये कॉमन एंगल है और दो एक Yes, एक sir. एक, एक 90 डिग्री है। तो अभी ये ट्रायंगल में चलो मैंने क्या लिया है, बी बी ए सी लिया। चलो अभी आप दूसरा नाम बताओ मुझे, बी ए सी सिमिलर टू, बड़े ट्रायंगल का नाम बताओ। देखो बी से तो स्टार्ट होगा, ये बात तो श्योर है क्योंकि बी Yes, कॉमन sir. एंगल है, तो बी लिख दिया, ठीक है। BD. बी ए सी है तो क्या लिखोगे बताओ, So BCD. बी सी डी, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि ये ए एंगल 90 है ना। Yes, बी ए sir. सी में ए 90 वाला लिया है मैंने, तो इधर बीच में भी उसका 90 एंगल आना चाहिए, तो बी सी डी, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अभी बी ए सी सिमिलर टू बी सी डी एंड सी लुक एट दिस एंगल, दिस ट्रायंगल। तो अभी BC. इसके करस्पॉन्ड में नाम चेंज कर दो इसका, बात समझ में आ रहा है आपको। देखो बी सी डी है ना, ये भी बी सी डी है, डी सी बी एंड बी सी डी आर सेम, सेम Yes, ट्रायंगल, तो sir. ट्रायंगल तो सेम ही है। तो अभी बी सी डी सिमिलर क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ। DSC. नहीं डी ए सी नहीं होगा ना, बी सी डी है यहाँ पे बी सी डी, तो इसका भी रिवर्स कर दो, सी ए डी हो जाएगा वो, ठीक है। आप देखो ऊपर के डायग्राम स्टेटमेंट में ये डी सी बी है, हमने हमें क्या बी सी डी के मतलब उस नाम में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए बी सी डी। तो जब मैं इसको बी सी डी कर दे रहा हूँ तो ये ट्रायंगल में भी सी ए डी कर दूंगा, बस और कुछ नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. तो देखो अभी इसमें क्या है, कैसे नाम लिया हुआ है, देखो जरा आप ध्यान से, बी ए सी एंड सी ए डी का, देखो बी ए सी सी ए डी। चलो अब मैंने आपको क्या बताया था क्लास में, कि मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि कैसे नाम लिखोगे डायरेक्ट, है ना। तो नाम लिखने का मैंने क्या आइडिया बताया था, एक बार आप ऐसे जाओगे, एक बार आप ऐसे जाओगे, Okay. है ना। तो अगर मैं Yes. इसको ऐसे लिखूं कि ए ए सी बी, ठीक है, सिमिलर टू, ये वाला लिया है मैंने, राइट वाला पहले लिया, ए सी बी सिमिलर टू ए डी सी, ए डी सी। चलो अभी आप देख लो यहाँ पे कैसे ये सेम है ना, कैसे लिया देखो, पहले मिडल मिडल पॉइंट लिया है, ए Yes, sir. सी एंड फिर बी लिया है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ए
डी एंड फिर सी लोगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, ए सी बी सिमिलर टू ए डी सी। तो ये एक्चुअली एक ट्रिक मैंने आपको दिया कि कैसे नाम लिखो, क्योंकि नाम लिखने में ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही तो हम रेशो लेंगे ना। यस सर। तो इसके आगे तो आपको पता ही होगा रेशो जो लिए थे, है ना, यस सर। वो नहीं सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो इसके बाद सिर्फ साइड्स का रेशो ले लो और सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू आ यस जाएगा। सर। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो चाहिए तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। डन सर। डन, ओके। और कुछ डाउट है फिर, क्योंकि अब फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। तो इंट्रोडक्शन टू फंक्शन का स्टार्ट करना था ना। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करना है, 2-3 मिनट बचा हुआ है, आपको मैं थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। यस सर। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इफ सपोज फंक्शन मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन मीन्स समथिंग इज फंक्शनिंग, राइट। अगर आपका मोबाइल फंक्शन कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? मोबाइल इज फंक्शनिंग, ठीक है ना। तो अगर आप स्विच ऑन कर रहे हो कोई भी फैन, लाइट, एनीथिंग, तो अगर आप स्विच ऑन कर रहे हो फैन का बटन और फैन चालू हो जा रहा है, तो आप क्या बोलते हो? फैन इज फंक्शनिंग, राइट। यस सर। लेकिन अगर आप मान लो फैन का बटन स्विच ऑन किए और लाइट और फैन दोनों चालू हो गया, या फैन चालू नहीं हुआ लाइट चालू हो गया, तो आप क्या बोलोगे? द बटन इज नॉट फंक्शनिंग, राइट। क्यों? यस सर। क्योंकि दैट बटन इज गिविंग यू टू आउटपुट, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो कैलकुलेटर में इफ यू आर फीडिंग 3+4, व्हाट इज द आंसर ऑफ 3+4? 7। 7। अगर वो 7 के जगह आपको दो आंसर दे दे, 7 एंड 8, तो आप क्या बोलोगे? कैलकुलेटर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, right? यस सर। So functioning means, function means what? For a particular input, there must be one and only one output. बात समझे आप? तो यस सर। अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं लाइक एक्स स्क्वायर, फंक्शन को शो कैसे करते हैं? दिस इज अ नोटेशन ऑफ शोइंग फंक्शन, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक मैंने ऑपरेशन दिया आपको, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं एक्स का कोई भी वैल्यू यहाँ पे फीड करता हूँ, so it will give you one and only one value of f of x, right? If x is 2, so it will give you only one value of f of x, that is 4. If x is 3, it will give you only one value of f of x, which is 9, ठीक है ना। तो एक एक इनपुट के लिए we have single output, right? यस सर। So that is called function, ठीक है। और फंक्शन क्या नहीं होता? अगर आपको मान लो, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स दे दिया, ठीक है, रूट एक्स दे दिया, यस सर। या रूट एक्स तो एक फंक्शन है एक्चुअली, अगर उसको आप डिटेल में देखने जाओ तो अगर, लेकिन मैंने ये रिलेशन दे दिया, एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स। तो अगर एक्स ले, इफ सपोज एक्स इज 4, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? हाँ, सर 4। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? जब x अगर 4 है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, ऐसे करो आप, सब्स्टिट्यूट ही कर दो तब, जब नहीं समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये स्क्वायर कर दिया, ये 4 हो गया, ठीक है ना, यही रिलेशन है ना। यस सर। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू +-2। बात समझो आप, क्योंकि अगर -2 का भी आप स्क्वायर करो तो 4 आता है, +2 का भी स्क्वायर करो तो 4 आता है। इसका मतलब वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन नहीं है, आप बात समझ रहे हो? ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज वी आर गेटिंग टू आउटपुट फॉर वन इनपुट। बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ग्राफिकली भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सेट वाइज देखेंगे, वी विल हैव डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड ग्राफ, वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल एंड लॉट ऑफ थिंग्स।